एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। শ্রাবণ মাসের সোমবার উপলক্ষে যখন মহাদেবের মন্দিরে জল ঢালতে যাচ্ছিলেন শিবভক্তরা, তখনই অপারেশন মহাদেবের কল্যাণে খতম করা হলো পেহেলগাঁওয়ের মাস্টার মাইন্ড জঙ্গিকে। हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं। 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওতে বেছে বেছে হিন্দু হত্যার ঘটনায় গর্জে উঠেছিল গোটা দেশ। কবে বদলা নেওয়া হবে প্রশ্ন তুলছিল দেশবাসী। তারপরই হলো অপারেশন সিঁদুর। পাকিস্তানে ঢুকে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা, কিন্তু জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দিলেও পেহেলগাঁওতে হামলাকারী জঙ্গিরা কি করে পালিয়ে গেল? তাদের কেন খতম করতে পারল না সেনা, সেই প্রশ্ন ওঠে। কবে সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি দেওয়া হবে তার অপেক্ষায় ছিল গোটা দেশ। অবশেষে 3 মাস অপেক্ষার পর বদলা নিল ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীরা। অপারেশন মহাদেব অভিযান চালালো পুলিশ, সেনা ও সিআরপিএফ। এর মাধ্যমেই 3 পাক জঙ্গিকে খতম করা হলো। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে রয়েছে পেহেলগাঁও হামলার জঙ্গি ও লস্কর-ই তৈবার টপ কমান্ডার হাসিম মুসা। Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. देखिए, ऐसा है, ये ऑपरेशन महादेव चल रहा है और अब स्टार्ट हो चुका है। कल रात से शाम से स्टार्ट हुआ है, अभी 2 बजे शायद बंद हुआ है। 3 आतंकवादी मारे गए हैं और खबर ये आई है कि उनका कनेक्शन हो सकता है जो पहलगांव के एपिसोड से। जो पहलगांव का एपिसोड है वो लॉन्च किया गया है, पाकिस्तान हैंडलर ने लॉन्च किया। उस टीम के अंदर ये भी होंगे और ये उसी टीम के होंगे जो भी पहलगांव में आए थे और ये इनको यहाँ भेजा गया है। तो ये हो सकता है कि उसी टीम के हैं, वो हैंडलर्स हैं। जैसे हम आपके से निरंतर कहते आए हैं, ये अंदर पीओके के अंदर कोई 18, 20, 25 किलोमीटर अंदर हैं और वहाँ से ये अपने ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। और इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया और 3 मार गिराए, बिल्कुल ठीक करा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जारी है, तो हमारे को कोई एक्शन नहीं, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एक्शन नहीं ले रहे। उसी निरंतर एक्शन के अंदर इनको पकड़ के हमने मार दिया। तो तीनों मारे गए हैं। तो ये एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट कार्यक्रम किया गया है। इसके आगे अब भारत क्या करता है, कहाँ अटैक करेगा, क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पता भी होगा तो हम नहीं बताएंगे। और मैं एडवाइस करूँगा इस समय अपने भारतीय फोर्स कमांडर्स की और अपने गवर्नमेंट को कि इस बात को जिक्र ना करें कि हम आगे कहाँ क्या करेंगे। बस हमने अपना पहले अनाउंस कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के अब तहत काम होगा। এবার আসা যাক কিভাবে চালানো হলো অপারেশন মহাদেব। শ্রীনগরের কাছে ঘন জঙ্গলে নিজেদের থাকার জন্য তাঁবু বানিয়েছিল জঙ্গিরা। তাঁবুর তলায় একাধিক সামগ্রী রয়েছে, যা দিয়ে শীঘ্রই আরও একটা হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল জঙ্গিদের। পোশাক, কম্বল, খাবার সামগ্রী সমস্ত কিছুই মজুদ ছিল সেখানে। নিরাপত্তা এজেন্সির আশঙ্কা শীঘ্রই আরও একটি বড় হামলার ষড়যন্ত্র করেছিল এরা, কিন্তু সমস্ত ছক বানচাল করে দিল ভারতীয় সেনা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অপারেশন মহাদেব শুরু করেছিল ভারতীয় সেনা। জওয়ানদের দেখে গুলি চালায় জঙ্গিরা। তারপরেই দুপক্ষের গুলির লড়াই শুরু হয়। গোটা এলাকা ঘিরে এনকাউন্টার চালায় সেনাবাহিনী। তাতেই নিহত হয়েছে 3 জঙ্গি। মাস্টার মাইন্ড হাসিম মুসার পাশাপাশি তার সঙ্গী আবু হামজা এবং মোহাম্মদ ইয়াসিনকেও খতম করা হয়েছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে অপারেশন মহাদেব শেষ হয়নি। এলাকায় আরও কোনো জঙ্গি লুকিয়ে থাকলে তাকেও খতম করা হবে। বদলা পূরণ হয়েছে, শান্তিতে ঘুমাতে পারবো। পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলায় নিহত সন্তোষ যুগদালের স্ত্রী প্রগতি ও মেয়ে আশা ভরি জানালেন,
অপারেশন মহাদেব চলতে থাকুক, সেনাবাহিনী সর্বদা সক্রিয় থাকুক, তাহলে নিরীহদের এভাবে বেঘরে প্রাণ হারাতে হবে না বললেন তারা। मदरसे में सिखाया जाता है ना उनको कि आप काफिर को मारेंगे तो आपको जन्नत नहीं, अभी उनको समझ में आएगा जन्नत नहीं जहन्नुम मिलेगा। जो सबसे नीचे वाला जहन्नुम रहता है ना, जहाँ पर कीड़े रहते हो, वैसे वाला जहन्नुम उनको मिलेगा। उनको गलत सिखाया जाता है, लोगों को मारा जाता है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मजहब, और मुझे बहुत प्राउड फील है कि मैं हिंदू हूँ। नहीं पढ़ूंगी मैं कभी अजान या कलमा, कोई भी आए मेरे सामने नहीं पढ़ूंगी। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हो जन्मी हूँ और मरूंगी भी हिंदू ही। कोई भी आए जाए मेरे सामने, पर नहीं। मेरे पति जैसे शहीद हुए हैं ना, वीर मरण बोलते हैं उसको, वो उनको वीर मरण मिला है। आज उनकी आत्मा को भी ठंडक मिली होगी कि मेरा मरना वेस्ट नहीं गया। वो दहशतवादी जो पहले भी उन लोगों ने किसी और को मारा होगा या फिर लोगों को तकलीफ दी होगी, इनकी वजह से ही क्यों न हो, पर वो मर गए हैं। सरकार को करना पड़ा है हमारे लिए कि हम लोग कैसे, हम बहुत इनोसेंट लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, हम लोग जो पैसे जमा करके अपने फैमिली को लेकर घूमने जाते हैं, क्या करते, और अचानक से ऐसे टेररिस्ट आएंगे और हम लोगों को मारेंगे तो ये नहीं चलेगा। ये हमारा देश है, ये ऐसे धर्मांध लोगों का देश नहीं है जहाँ पर आप कहीं से भी आए और हम लोगों को मार दिया। इसका तो बदला लेकर ही रहेंगे। पहले वाली सरकार का अलग था, पर अभी ये सरकार वैसी नहीं है। मैं भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज़ अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिज़ल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूँगी कि आगे ये कभी वापस ना हो, कोई भी अपने पिता या फिर अपने पति को ना खोए, और देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव, तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी, और कभी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पहलगाम में हुआ था या इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए उसमें ना हो। इसलिए मैं सरकार से विनती करूँगी कि अपने फोर्सेस को हमेशा एक्टिव ही रखे, और जो आज उन्होंने किया है 3 मंथ्स में, ये जो कंप्लीट हुआ टारगेट, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको आज मार के उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है और एक हिम्मत दी है कि शायद ही आगे ये वापस कभी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमारी सरकार या हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस चुप नहीं बैठेंगे। এভাবেই বেছে বেছে সন্ত্রাসবাদীদের খতম করা হোক বললেন কানপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় দ্বিবেদী। জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন তার ছেলে শুভম দ্বিবেদী। ये जो 22 अप्रैल का आतंकवादी हमला हुआ था वो हमारे देश पे हमला था। दुश्मन मुल्क ने आतंकवादी भेज के हमारे देश के निर्दोष नागरिकों का जघन्य नरसंहार कराया था। ये हमला देश की अस्मिता में हमला था, देश की अखंडता पे हमला था। निश्चित तौर पे सरकार जो कर रही है संसद में चर्चा वो होनी ही चाहिए, और जिस तरह हमारी सेना ने साहस और शौर्य का, पराक्रम का परिचय दिया है उन आतंकवादियों को मार करके, निश्चित तौर पे हम उनको बधाई देते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, और ये अपनी सेना से, अपनी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जब तक आतंकवाद का पूर्ण सफाया न हो जाए तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जाना चाहिए, चाहे वो अपने देश में हो अथवा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में उनके बैठे हुए आका ही क्यों ना हो। চোখের সামনে জঙ্গিদের গুলিতে মরতে দেখেছেন স্বামীকে, সেই কথা মনে পড়লে চোখের জল যেন বাঁধ মানতে চায় না। মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা কৌস্তভ গানবাটের স্ত্রী সঙ্গীতা গানবাটের। 3 महीना तो हम बहुत राह देख रहे थे, अभी तक कैसे क्या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पकड़े गए, उनको मार दिया गया। सच्ची में बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी का और सब मिलिट्री वालों का, नेवी वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमेशा 3 महीने से जो परेशानियां से आपको गुजरना पड़ रहा है, अभी भी वही उसी में से गुजर रहे हैं हम एक दिन भी भूल नहीं पाते कि हमारे हस्बैंड इधर नहीं है। रोज सुबह उठती हूँ, जिधर वो सोते थे उधर गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलती हूँ, लाइट लगा देती हूँ उधर का, चलो उठे कि आप मैं चाय रखती हूँ, ऐसा रोज ऐसा हो रहा है। भूल नहीं पा रहे हम वो चीज़ कि हमारे आंखों के सामने उन्होंने मार दिया है। সোমবার শ্রীনগরে অপারেশন মহাদেবে পেহেলগাঁও হামলার 3 জঙ্গিকে খতম করেছে ভারতীয় সেনা। মঙ্গলবার লোকসভায় এ বিষয়ে বিবৃতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতীয় সেনা এবং জম্মু কাশ্মীরের পুলিশের তৎপরতায় জঙ্গিরা পালাতে পারেনি, উদ্ধার করা হয়েছে সেই আগ্নেয়াস্ত্র যা পেহেলগাঁওতে পর্যটক হত্যায় ব্যবহার করা হয়েছিল, দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ দাবি করেন এই সন্ত্রাসবাদীরা পেহেলগাঁওয়ের হামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। অপারেশন মহাদেবে আমাদের সেনাবাহিনী তাদের নিকেশ করেছে। নিহত 3 জঙ্গির নামও জানান শাহ। তিনি বলেন এই 3 জঙ্গির নাম সুলেমান, আফগান এবং জিবরান। এই 3 জনকে খাবার জুগিয়ে সাহায্য করেছিল যে ব্যক্তি, তাকে আগেই আটক করা হয়েছে। সেই নিহত জঙ্গিদের দেহ শনাক্ত করেছে। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। শ্রাবণ মাসে বড় পদক্ষেপ করেছে সেনাবাহিনী, ভারতবাসী হিসেবে গর্বিত বললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। It's a great victory of our army and paramilitary. We are proud of it. श्रावण मास चल रहा है, ऑपरेशन महादेव, ये बहुत बढ़िया कदम है। অপারেশন সিঁদুরের সত্যকে সামনে আনতে হবে, এমনই দাবি তুলেছিলেন বিরোধীরা। ইতিমধ্যেই অপারেশন সিঁদুর, অপারেশন মহাদেব সমস্তটাই সংসদের সামনে রেখেছে মোদী সরকার। তবে তাতেও সন্তুষ্ট নন বিরোধীরা। 10 বছর কি করেছে মোদী সরকার? এত দ্রুত কাজ করলে এতদিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীরও হাতে পেয়ে যেত ভারত। যখন পিওকে অধিগ্রহণ করার সুযোগ ছিল তখন তো হাত গুটিয়ে নিলেন, প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা ইমরান মাসুদ। ভারতীয়দের সিঁদুর কেড়ে নেওয়ার পর কেন পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে ভারত? কটাক্ষ কংগ্রেস নেতার। हम एक सवाल, 1 घंटे के अंदर आतंकवादी कहां से पकड़ लिए? पिछले 100 दिन से तो पकड़े नहीं जा रहे थे। एकदम आतंकवादी कौन थे? वो आतंकवादी कौन थे? वो कॉन्स्पिरेटर। जब सुबह सवाल खड़ा हुआ तो आपने दोपहर को मार दिए। अरे वाह, कितना बड़ा तेज काम चल रहा है। इतनी तेजी दिखाई होती तो पीओके पे कब्जा हो गया होता, पीओके हमारा होता। जिस टाइम पीओके पे कब्जा करना था उस टाइम तो सरेंडर हो गया, उस टाइम तो बंद कर दिया बटन। अब बता रहे हैं हमको
विदेश मंत्री ने भी बातें कही कि भाई पुरानी बातें कर रहे हैं आप लोग खुद जो है आपने क्यों नहीं कुछ कर लिया 2011 के अंदर 2008 के अंदर क्यों कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कभी इनएक्टिव। आज बताओ ना, सरकार में हो 10 साल से आपने क्या किया, आज बताओ ना आपने क्या किया। पाकिस्तान को खुलेआम चाइना सपोर्ट कर रहा है और आप चाइना के साथ जाकर के गलबैया कर रहे हो हैं? पाकिस्तान आतंकवाद को पोषण कर रहा है और आप उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हो। हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आपको अपना क्रिकेट दिखाई देता है, हमारी बहनों के सिंदूर नहीं नजर आते आपको, बिल्कुल भी नहीं। एक बात का भी जवाब नहीं दिया है, एक बात का भी जवाब दे नहीं पा रहे हैं। इनके पास जवाब ही नहीं है, इनके पास जवाब ही नहीं है, दे नहीं पा रहे हैं, बुरी तरह से गिर गए हैं। অপারেশন সিঁদুরের মাহাত্ম্য প্রচার করতে বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন এমআইএম নেতা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। সেই সময় দেশে ফেরার আগেই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন সর্বদল প্রতিনিধি দলের সদস্য হলেও দেশে ফিরে ফের মোদী সরকারের বিরোধিতাই করবেন। আবারও পুরনো ফর্মে দেখা গেল ওয়াইসিকে। লোকসভায় দাঁড়িয়ে ওয়াইসি বলেন, ভারত যেখানে পাকিস্তানের জন্য সিন্ধুর জল বন্ধ করে দিচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারত পাক ক্রিকেট ম্যাচকে কি করে সায় দিতে পারে? आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे, एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? ये आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा? ये পেহেলগাঁওতে যখন 4 জন জঙ্গি প্রবেশ করেছিল তখন বিএসএফ, সিআইএসএফ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কি করছিল? এমন অপদার্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কেউ কখনো দেখেনি। এর দায় নিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে, বললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অবাক হবার মতো বিষয় হলো যে এই সন্ত্রাসী হামলাকারীরা কি করে সেদিন ওখানে এলেন? 4 জন টেররিস্ট কি করে এলো? 4 জন টেররিস্ট এসে 26 জনকে গুলি করে মেরে দিয়ে চলে গেল। আমাদের বিএসএফ কি করছিল? আমাদের সিআইএসএফ কি করছিল? আমাদের বিএসএফ সিআইএসএফ নেই। মাননীয় অমিত শাহ কি করছিলেন? হোম মিনিস্টার আপনি কি করছিলেন সেদিন? গোটা ডিপার্টমেন্ট স্তব্ধ। আজকে তাদের গাফিলতির জন্য, বিএসএফ সিআইএসএফ এর গাফিলতির জন্য আজকে 26 জনের প্রাণ হারিয়েছে এবং 4 জন টেররিস্ট হাঁটতে 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 পাকিস্তান চলে গেল আর আমাদের বিএসএফ সিএসএফ জওয়ানরা বসে বসে দেখলো। অমিত শাহজি চলে গেছেন, এখন নিত্যানন্দজি রয়েছেন। এত অপদার্থ হোম মিনিস্ট্রি কখনো বোধহয় কখনো কেউ দেখেনি। Such an absolute irresponsible home ministry. পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে অপারেশন সিঁদুর, অপারেশন মহাদেব চালানো হলেও বিরোধীদের প্রশ্ন তোলার বহর এখনো অব্যাহত। এই আবহে অপারেশন মহাদেব নিয়ে পাকিস্তান কি বলছে দেখে নেওয়া যাক। নিহত জঙ্গিদের নিরাপরাধ বলে দাবি করেছে ইসলামাবাদ। লস্করি তৈবার জঙ্গি সুলেমান পাক সেনাবাহিনীর এলিট ইউনিট স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের একজন প্রাক্তন কমান্ডো বলে দাবি পাকিস্তানের। পাকিস্তান আরও দাবি করেছে পাকিস্তানিদের আটক করে এনকাউন্টারে হত্যা করছে এবং তাদের জঙ্গি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। অপারেশন মহাদেবের নামে ভুয়ো এনকাউন্টার চালানো হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে পাক সংবাদ মাধ্যম ডনের একটি প্রতিবেদনে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।